इंट्रोडक्शन ये हमारा BGC 132 का फर्स्ट यूनिट है, प्लुरैलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, उसका इंट्रोडक्शन है। Eminent scholars and commentators have criticized the step motherly treatment given to Indian literary studies and traditions, within which Western literature and culture in our universities, and have attributed this lapse to four reasons: the colonial hangover resulting in love for Western culture and a continuation of English studies to the neglect of studies in Indian culture and literature, the emphasis on modernity that has diminished the importance of Indian literature, which is mistakenly viewed as an ancient tradition and therefore anti modern, the advent of print technology that has privileged written text over the rich Indian oral literary traditions that include folk and tribal literature, the application of Western literary canons that is not wholly applicable to Indian literary tradition. Analysis of the point listed in the introduction. अब हम उन points को analyze करेंगे जो हमारे introduction में list किए गए थे. While there is a lot of merit and value in what has been said in defense of Indian literary, ये बताया गया है कि while there is a lot of merit, इस चीज के बहुत ज्यादा merit भी है, and value in what has been said in defense, और उसकी value भी करनी चाहिए जो कि हमें defense of Indian literary ने मतलब Indian literary की defense में कहा है, and cultural traditions के, all of it need to be toned down with a more Catholic, ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा टोन डाउन करनी चाहिए विद अ मोर कैथोलिक एंड लिबरल approach in tune with the distinctive Indian culture of pluralism. जो हमारा लिबरल अप्रोच है उसको ट्यून करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव है और प्लूरलिज्म है उसमें बहुत ज्यादा. It is not true that all that is modern and western is unexpectable and all that is past and indigenous is glorious and exotic. ये बात सही नहीं है कि जो मॉडर्न और जो वेस्टर्न है वो अनएक्सपेक्टेबल है, ये सही नहीं है, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि जो हमारा पास्ट है और जो इंडिजीनियस है हमारा वो ग्लोरियस था और एग्जॉटिक था. Each has its distinguished tradition and a parallel study of the two tradition. हर किसी के अपने distinguished tradition है और parallel study है किसी भी two traditions की, can enrich and broaden our understanding. किसी भी two traditions के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारी जो understanding है उसको enrich करता है और broaden करता है, मतलब उसे बढ़ा देता है, without necessarily giving one more importance than the other. बिना एक को बहुत ज्यादा importance दिया हमें दोनों को पढ़ना चाहिए. Our universities seem to be more in agreement with Kipling's famous phrase. जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा एग्री करती है किपलिंग के फेमस फ्रेज से, जो कि है ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन शैल मैट. वो कहता है कि हमें वो हमेशा ईस्ट और वो ईस्ट ही रहेगा, वेस्ट और वेस्ट ही रहेगा, वो कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे. The solution to root out this perceived bias and discrimination in favor of Western tradition as against Indian tradition does not lie in either or, but in and it has to be inclusive. जो solution है to root out, जो हमें root out करना है bias और discrimination favor का कि Western tradition को favor किया जाता है as against Indian tradition, ये हमेशा does not lie in, ये कभी भी lie नहीं करता है either और but in and it has to be inclusive, और इसको inclusive रहना चाहिए. Further, oral tradition and written texts are two distinct genres. हमारे जो अगर हम आगे देखें तो हमारे जो oral tradition है और जो written text है वो टू हमारे distinctive genres है. When you hear the word literature, जब हम word literature को सुनते हैं, we usually associate it with books. हम उसको हमेशा समझते हैं कि वो बुक से रिलेट होगा. That is the written word, मतलब उसमें सारे लिखे हुए शब्द होंगे. Before writing was developed, जब मतलब जब तक राइटिंग डेवलप नहीं होती उससे पहले पीपल स्टिल टोल्ड स्टोरीज, तब भी लोग क्या करते थे, स्टोरीज अपने बताते थे एंड पास देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. और तब भी जो लोग थे वो अपनी जो स्टोरीज हुआ करती थी वो जनरेशन टू जनरेशन पास किया करते थे थ्रू ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन. अपनी जो ओरल वो बताते थे, मतलब अपने जुबानी बताते थे उससे. Many classics of world literature from the Iliad, जो बहुत ज्यादा क्लासिक्स जो वर्ल्ड लिटरेचर से आए हैं, जैसे कि द इलियाड द एंशियंट ग्रीक एपिक, ये हमारी एक ग्रीक एपिक है, या द रामायण एंड द महाभारत, ये हमारे दोनों क्लासिकल इंडियन एपिक्स हैं.
वर पास डाउन ओरली बिफोर बीइंग रिटन डाउन। ये क्या हुए थे, पहले ओरली ही पास आउट करे थे, जब तक कि रिटर्न नहीं किए थे उससे पहले ये ओरली ही बताए गए थे। द अर्लियर प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द एपिक्स ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज नोन एज द ओरल ट्रेडिशन। पहले के जो प्रोसेस हुआ करता था जब हम एपिक्स को भी ट्रांसमिट किया करते थे ओरली जनरेशन टू जनरेशन, तो इसको हम ओरल ट्रेडिशन के नाम से जानते थे। The oral literary tradition has survived many ages and is today preserved as written text in multiple forms. जो हमारी ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन था वो बहुत सालों तक चला था और आज उसको हमने प्रिजर्व कर लिया है रिटर्न टेक्स्ट में अलग अलग फॉर्म में, मल्टीपल फॉर्म्स एंड लैंग्वेजेस, अलग अलग फॉर्म में और अलग अलग लैंग्वेजेस में। दिस इज अगेन अनदर इंस्टेंस वेयर टू डिस्टिंक्ट जनरस एनरिच ईच अदर। ये भी एक दोबारा से एक इंस्टेंस है जहां पर दो डिस्टिंक्ट जनरस एक साथ मिल रहे हैं। वाल्मीकि's रामायण in the oral tradition is as inspiring and poignant as तुलसीदास रामचरितमानस composed in हिंदी। मतलब कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि की जो रामायण थी ओरल ट्रेडिशन में जो कि इंस्पायरिंग थी और पोइग्नेंट थी, वो बिल्कुल सेम टू सेम है तुलसीदास की रामचरितमानस से, जो कि हिंदी और अवधी में कंपोज की गई थी। एंड राजा गोपालाचारी's रामायण, और जो राजा गोपालाचारी's रामायण थी जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी, ये सारे अलग अलग जनरस से आते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे में एनरिच करते हैं, तीनों एक दूसरे में एनरिच करते हैं। टुडे वी हैव नॉट वन बट मैनी रामायण्स ईच विद इट्स ओन कल्चर कंसिस्ट context and frames of reference। आज के जमाने में वी हैव नॉट वन, एक हमारे पास रामायण, ये बहुत अलग अलग रामायण है जो कि अपना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट करती है और फ्रेम करती है अपना रेफरेंस। देयर आर मैनी ग्रेट पोएट्स सच एज काम्बन, कृति भाषा, तुलसीदास एंड एकनाथ। बहुत अलग अलग ग्रेट पोएट्स हुए हैं हमारे, जैसे कि काम्भान, कृति भाष, तुलसीदास, एकनाथ, टू नेम अ फ्यू। ये कुछ फ्यू ही हैं, मतलब बहुत कम है ये लोग। हु हैव कंपोज्ड एंड रिटोल्ड द स्टोरी ऑफ द रामायण। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दोबारा से कंपोज करके दोबारा से अपनी जो रामायण थी हमारी वो दोबारा से बताई थी इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में, विद एग्जांपल्स ड्रॉन फ्रॉम लोकल कल्चर। और उन्होंने इसमें एग्जांपल भी बताए थे लोकल कल्चर से लेके, और एम्बेलिशिंग दी स्टोरी, और उन्होंने एक स्टोरी को नया तरीका दिया था, नया मोड़ दिया था। एम्बेलिशिंग दी स्टोरी विद इंटरेस्टिंग लोकल flavors all the while paying homage to Valmiki as the आदि कवि। और जो उन्होंने अलग अलग लोकल फ्लेवर से उसको इंटरेस्टिंग बनाया था, ऑल द वाइल पेइंग होमेज, जब भी जो होमेज पे किए जाते थे वाल्मीकि के आदि कवि थे क्योंकि वो फर्स्ट पोएट थे। एंड ऑल्सो फीलिंग फ्री टू क्रिएट ऑन देयर व्यू, और वो फ्री थे कि वो अपनी क्रिएट कर सकते हैं अपने ओन, जो उनके अपने जो थॉट्स है इस बारे में। This is how oral tradition has been continuously nurtured in Indian society and its tradition preserved in written text। इसलिए ही इस तरीके से जो हमारा ओरल ट्रेडिशन था वो कंटिन्यू चलता रहा हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे ट्रेडिशन में, और अब इस ट्रेडिशन को हमने रिटर्न टेक्स्ट के हेल्प से या मदद से उसको प्रिजर्व कर लिया, मतलब उसको बचा के रख लिया।